السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ پاک ایسی سوچ عطا کرے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا، سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ دانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ پاک کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سکون ہے، سب کا سلیقہ نہیں۔ یا رب میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ پاک خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ جب اللہ پاک کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ اللہ پاک جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اے انسان کے اپنے اختیار میں وہ اپنے دل کو دوسرے کے لیے کتنا خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ ہار جانا نہیں بلکہ حوصلہ ہار جانا، اصل ہار جانا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، نہ سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ ہر شے کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ کبھی کبھی جس چیز کی تلاش آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو تب ملتی ہے جب آپ اس کی تلاش کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراش ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاش ہوتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ زندگی صدیوں سالوں مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کسی سے کوئی طبق نہ رکھیں، کیونکہ طبق کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکر کی جد میں رہتا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنی خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آنکھ ہو۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ پاک کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہوتا ہے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔
जिंदगी की हर ठोकर हमें यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह पाक के सिवा हमारा कोई नहीं। जब आप गलत हो तो कबूल कर लें और जब आप सही हो तो खामोश हो जाए। वो नेकी बड़ी मौत है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता, बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। दुनिया का हर इंसान दर्द का तर्जा रखता है, मगर फिर भी किसी के दर्द को महसूस नहीं करता। मियार यह नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, बल्कि मियार तो यह है कि किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं। हुजूम से मियार तक बहुत फासला है। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। इंसान को हमेशा वही से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहाँ वो पूरी तरह मकस होता है। अपने जहनी आराम के लिए हर चीज को मुख्तसर करना सीखे। अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिश और लोग, अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है, बस कमी हमारे अखलाक और रवैयों में है। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि अच्छा अखलाक और उसका ईमान। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा वापस नहीं आते। बेजुबान से हमदर्दी करना ना भूलो, यह बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है, मगर हम उसका हिसाब रखते हैं जो ना मिल सका। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह ना करें। मुस्कुरा कर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। खुद को अल्लाह पाक की रजा के सामने ऐसे ढाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। लोगों का भला जरूर करें, लेकिन उनसे यह उम्मीद न रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। कद्र करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले लोग ज्यादा होते हैं। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह पाक जरूर करेगा। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह पाक रोने वालों को। कभी आंसू, कभी सजदा, कभी हाथों का हुजाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है, जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है। बेशक वही रब परेशानी के बाद खुशियां भी देगा। जब इंसान अपने रब पर उस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह पाक भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें जो अल्लाह पाक से जोड़ता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह पाक सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्त से गुजरे हैं और अल्लाह पाक वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नियमतों का शुक्र अदा नहीं करता। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जाता, माफ करना और इंसाफ करना। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह पाक कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी अरीज कब्रिस्तान हो, जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करें। लोग जितना भी दिल दुखाएं, यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं।
परेशान ना हुआ करो, अल्लाह पाक ने तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा है। मुकद्दर लिखने वाली जात है, उसके पास मुकद्दर बदलने का इख्तियार भी है। आप किसी को भी दो चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसके काम का जिम्मा अल्लाह पाक खुद लेना चाहता है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात न रखें, न झगड़े तवील होने दें, माफ कर दें, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इतनी तो कोशिश जरूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बना देता है और कद्र करना हीरो से मिलवा देता है। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा का करता है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जो शख्स मौत का मुंतजिर है वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर लें। मुश्किल खत्म हो जाएगी, मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। यह मत सोचो कब देगा, लेकिन जब देगा बेहिसाब देगा। अगर रिज्क अकल और दानिश से मिलता है तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही न रहते। जो इंसान हर तरह के लोगों की राय को कबूल करता है उसे गलती और झूठ की जाल की समझ होती। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नदामत अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है अल्लाह पाक उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। ख्याल रखना तुम्हारी वजह से किसी की आंख नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना होगा। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन उसे बुरा कहा जाए तो नाराज हो जाता है। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। वक्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। हजरत अली ने फरमाया, कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो
तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई भी तोड़ नहीं सकता। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म न करे, और बेशक रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। सोने को आग से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइश से आजमाया जाता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह पाक कभी भी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी किसी मकस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। यकीनन अल्लाह पाक मकस दिलों को नवाजता है, वक्त लगता है लेकिन अता कमाल करता है। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मोज़िज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिन लम्हों में भी दुआ मांगते रहो, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। कबूलियत दुआ में ताक़ी का यह मतलब नहीं कि हमारे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, बल्कि दरअसल अल्लाह पाक हमें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मुझ पर कितना भरोसा करता है। तो बस अपना दिल उस रब की तरफ मुतवज्जो रखें और मुंतज़िर रहें उसकी रहमतों की। यहाँ देर है अंधेर नहीं। बेफिक्र हो जाए, अल्लाह पाक मकरी दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं करता। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाज दिया जाएगा कि तुम दर्द और तकलीफ की तलकियों को भूल जाओगे। इस्लाम में औरत का रुतबा और मुकाम बहुत बड़ा है, और जिसका रुतबा और मुकाम बढ़ जाता है उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मोज़िज़े होते देखोगे। इंशाअल्लाह आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, उसको बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अगर खुश रहना चाहते हो तो किसी से उम्मीद न रखो और न किसी से शिकवा करो। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा रब नहीं। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। या रब मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना, जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उसी पर तवक रखें। किसी बुजुर्ग से पूछा, जब रब दिलों के हाल जानता है तो बेकसूर इंसान परेशानियों में मुब्तला क्यों रहता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह पाक आजमाता है, वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। जिससे बहुत प्यार किया जाए उसे बहाने बहाने से आजमाया भी जाता है। सुकून हमेशा तकलीफ के बाद और कामयाबी हमेशा नाकामयाबी के बाद मिलती है। हिम्मत न हारें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन यह भी सच है कि हर टूटी हुई उम्मीद हमें हमारे रब से जोड़ती है। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस के उस जिंदगी और मौत के दरमियान यही बनी इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ न लाया था, ना ही ले जा सकता है। मोहब्बत अल्लाह पाक से हो तो बंदगी बन जाती है, मोहब्बत उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है, मोहब्बत वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। जिसके अखलाक उम्दा हैं उनकी सोहबत तलाश करो। लाजिम नहीं जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो वो अल्लाह पाक का दोस्त भी हो, मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाए कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं,
उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी उस वक्त आसान हो जब मैंने यह जान लिया कि हर शख्स अपनी जुबान से अपनी तरबियत और अपना जर्फ दिखाता है। उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज हकीकत में उसी के लिए होता है। दूसरे को गाली बके या तारीफ करें, नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना। मुझे जिसका जितना जर्फ था उतना ही पहचाना। मुझे माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाए तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। जमीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो जाएं। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। हजरत अली ने फरमाया, कभी भी गम मत करना कि दुनिया आंख के साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आंख के साथ है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आंख के खिलाफ हो तो वो एक आंख के साथ हो। जो अपनी हर परेशानी को खुलकर एक से बयां कर देता है, वो अपनी जिल्लत से राजी होता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सकता। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है। ये गर्म है तो हाथ बता देता है, सख्त है तो दांत बता देती हैं, कड़वा है या तर्ज है तो जुबान बता देती है, और अगर बाज है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल है, ये फैसला हमें करना है। कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं। आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी करें, लेकिन आखिर पर वो आपको ही डंक मारेंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, जब मर जाता है तो चींटियां उसे खाती हैं। एक दरख्त 1 लाख माचिस की तीली बना सकता है, मगर माचिस की एक तीली 1 लाख दरख्त जला सकती है। जमीन इंसान को रिज्क देती है, मगर जब इंसान मर जाता है तो जमीन उसे अपना रिज्क बना लेती है। एक अच्छा इंसान होने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा इल्म हो। अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास एक मोहब्बत भरा दिल, दूसरों के दुख दर्द सहने के लिए खुले हुए कान और हर किसी की मदद करने के लिए बड़े हुए हाथ। जिंदगी की मुनाफिक सदा ठोकर में सबसे कीमती धोखा वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। सफर जिंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है, समझ जाओगे। उदासी का मतलब जाकर किसी कब्र की बेबसी तुम देखना। अल्लाह पाक फरमाता है, मत हो परेशान मेरे बंद किए हुए दरवाजों पर, मैं खैर लाने से पहले मुसीबतों से गुजारता हूँ। तकरीबन 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हानि नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस न करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन रवा देते हैं, बदतर दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह पाक रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। जरूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पख्तगी की है। पर बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की
आसाय से वाकिफ है। इबादत से जन्नत और खिदमत से रब मिलता है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह पाक ने, जो हर दफा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मखनी नहीं होते जितना अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। जब आप कोई फैसला ना कर पाए तो इंतजार करें, अल्लाह पाक के फैसले का वो आपके सामने सब वाज़ेह करता जाएगा, गिरह खोलता जाएगा। मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। उलझना छोड़ दें ऐसी चीजों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो अपना आप बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और जिंदगी का सबसे तारीख पहलू ही यही है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजीज है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह पाक की नजर में मौत हो जाता है। बंदगी में इस्तिकामिया हो तो इबादत कैसी। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। यकीन माने सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद हिला देती है। सब्र कर लो यह सोच करके जो कुछ भी हो रहा है उसी में अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह पाक एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और उस रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से भर जाएगा। मसला यह भी है हमारे साथ कि हमें दूसरों का मसला नहीं लगता। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी तार होती है। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में से याद रखें। अल्लाह हाफिज।